Hello, my dear students of class 10th of ICSE. Welcome to Imavate Academy. So, we are doing revision series for class 10th for the subject physics. Before this lecture, we have done the chapter force and work, energy, and power. Lecture number 1 and lecture number 2. In these two lectures, we have discussed the chapter force very thoroughly and elaborately. We have discussed all types of questions, all types of concepts which are required in this chapter. Then in lecture number 3, lecture number 4, and in lecture number 5, we have discussed the chapter work, energy, and power. Now in this lecture, lecture number 6, we are going to start the chapter machines. All right. So I hope that you have watched the previous lectures and then you are attending this lecture number 6. Even if you have not watched the previous lectures, you can continue watching this lecture because here in this lecture, we are going to start a new chapter, machines. All right. But definitely later you have to watch the previous lectures so as to understand what we have discussed in these chapters, force and work, energy, and power. All right. Now, children, there's a separate playlist in which I'm keeping all the revision sessions separately. You can directly go to my playlist section and find that playlist. You will be getting all the lectures arranged properly. Also in the description box of this video, I'm providing the link of that playlist. You can click on that and directly go to that playlist where you will find all the previous lectures. All right, so today we are going to start this chapter, machines, very important chapter. And this is the third chapter. And here we are today in this lecture, we are going to study these topics: definition of a machine, principle of a machine, uses of simple machines, load kya hota hai, effort kya hota hai, mechanical advantage, velocity ratio, work input, work output, and efficiency. So we are going to discuss a good amount of topics today and also important questions based on them. So let's get started. The very first thing that you have to know about machine is that machine can do three important things for us. Before we discuss the definition of machine, let us understand that how a machine can be useful to us. Machine, कोई भी machine हो, हम basically यहाँ simple machines की बात कर रहे हैं, and there are a lot of types of simple machines like pulley, लीवर, वेज, स्क्रू, व्हील एंड एक्सल, इंक्लाइंड प्लेन, इस तरह के काफी सारे मशीन्स हैं. लेकिन तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ पुली है. लीवर था लेकिन लीवर को रिमूव कर दिया गया. ठीक है, बुक में देखोगे लीवर भी है लिखा हुआ, बट लीवर हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम योर सिलेबस दिस टाइम. सो यू हैव टू ओनली स्टडी अबाउट पुली. ओके, पुलिस के बारे में पढ़ेंगे. तो पुली को पढ़ने के लिए भी हमें कुछ बेसिक नॉलेज की जरूरत है. सिंपल मशीन्स जब हम बात करते हैं, दे कैन बी यूज्ड इन थ्री डिफरेंट टाइप्स. इट कैन बी यूज्ड एज अ फोर्स मल्टीप्लायर और अ स्पीड मल्टीप्लायर ओके, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता. फोर्स कैन नॉट बी यूज्ड लाइक as a force multiplier and also as a speed multiplier नहीं, इसलिए मैंने और लिखा. A machine can be either a force multiplier or a speed multiplier, and or it can be used as a device to change the direction of effort to a convenient direction. Let us understand these three uses of simple machines with some examples of machines. Then only we will understand. Force multiplier क्या होता है, speed multiplier क्या होता है, and a device to change the direction of effort to a convenient direction क्या होता है. चलो, इनको समझने के लिए सबसे पहले हम एक लीवर का एग्जाम्पल लेते हैं. वैसे तो लीवर तुम्हारे सिलेबस से रिमूव्ड है, लेकिन फोर्स मल्टीप्लायर को समझने के लिए लीवर का एग्जाम्पल बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल होता है. तुम्हें समझ में आएगा फोर्स मल्टीप्लायर होता क्या है. ठीक है, सपोज यू हैव अ बिग स्टोन, बड़ा सा रॉक है, बड़ा सा पत्थर है जिसका वेट है बहुत ज्यादा. तुम ऐसे बहुत बड़ा पत्थर है, यू कैन नॉट लिफ्ट इट विथ योर हैंड्स, हाथ से नहीं उठा पा रहे हो. ओके, तो इसका जो वेट है जिसको हमें ओवरकम करना है, इस वेट को ओवरकम करना है, उसे हम लोड बोलते हैं. तो बेसिकली लोड क्या है, यहाँ पे जो टर्म हम आगे लिखने वाले हैं या समझने वाले हैं, लोड क्या है. लोड इज द
फोर्स विच वी हैव टू ओवरकम, इस वेट को मुझे ओवरकम करना है, तो दिस वेट ऑफ द स्टोन इज द लोड, ओके, दिस फोर्स इज द लोड। इसको मैं हाथ से नहीं उठा सकता, इसलिए मैंने एक रॉड का यूज किया। रॉड इज द लीवर, एक रॉड का यूज किया है, सिंपल सा रॉड है। इस रॉड को ऐसे रखा और नीचे एक सपोर्ट रख दिया, इट मे बी अ स्मॉल स्टोन, ओके, एंड ये लंबा सा रॉड है, एंड दिस रॉड कैन बी यूज टू मूव दिस बिग स्टोन। एट दिस पॉइंट, से दिस इज पॉइंट ए, इफ आई अप्लाई फोर्स जिसको हम बोलते हैं एफर्ट, मैंने एक फोर्स लगाया जिसे हम एफर्ट बोलते हैं, इनपुट फोर्स, एंड यू अप्लाइंग दिस एफर्ट, दिस लोड कुड बी ओवरकम, लोड को मैंने ओवरकम कर दिया, यानी इस इतना भारी पत्थर को मैं हिला दिया, मूव कर दिया। अगर लीवर का यूज नहीं करता तो नहीं कर पा रहा था। यानी मान लो कि ये जो वेट है ये 1000 न्यूटन का पत्थर था, काफी भारी पत्थर था, 1000 न्यूटन इसका वेट था, यानी लोड वाज 1000 न्यूटन। लेकिन तुमने एफर्ट लगाया ओनली से 30 न्यूटन, तुमने सिर्फ 30 न्यूटन का एफर्ट लगाया, लेकिन काफी ज्यादा फोर्स को ओवरकम कर लिया। छोटा फोर्स लगाकर बड़ा फोर्स को ओवरकम कर लिया। ऐसे सिचुएशन में हम इसे बोलते हैं फोर्स मल्टीप्लायर, यानी फोर्स मल्टीप्लाई हो गया। तुमने लगाया छोटा फोर्स, लेकिन उसने उठा दिया काफी बड़े फोर्स को, ओवरकम किया काफी बड़े फोर्स को। तो कभी भी ऐसा होता है कि लोड काफी बड़ा हो जाए एफर्ट से, यानी एफर्ट इज स्मॉलर देन लोड, अगर हम ऐसा लिखें, एफर्ट जैसे इस केस में दिख रहा है कि हमने छोटा एफर्ट लगाया लेकिन बड़े भारी लोड को ओवरकम किया। व्हेन एफर्ट इज लेस देन लोड, देन दैट मशीन इज अ फोर्स मल्टीप्लायर। तो फोर्स मल्टीप्लायर होने के लिए इंपॉर्टेंट एंड कंपल्सरी कंडीशन क्या है कि एफर्ट होना चाहिए छोटा देन द लोड, यानी लोड होगा बड़ा देन द एफर्ट। ये तो समझ में आ गया फोर्स मल्टीप्लायर। तो दिस मशीन, ये जो लीवर है इस केस में तुम्हें दिख रहा होगा, क्लियरली समझ में आ गया होगा कि इसमें हमने कम फोर्स लगाकर ज्यादा फोर्स को ओवरकम किया, यानी एफर्ट कम है लोड ज्यादा है। इस तरह के मशीन को हम बोलते हैं फोर्स मल्टीप्लायर। यू शुड नो दैट लीवर इज नॉट द ओनली एग्जांपल ऑफ फोर्स मल्टीप्लायर। वैसे तो हम पुली में भी फोर्स मल्टीप्लायर हो सकता है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे चैप्टर में, ओके। उसके ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम होता है, उसमें पुली का हम डिस्कस करेंगे। यू विल अंडरस्टैंड कि वहां पर वो फोर्स मल्टीप्लायर होता है। लेकिन एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की। अभी ब्लॉक एंड टैकल के एग्जांपल से अगर फोर्स मल्टीप्लायर समझाऊंगा तो तुम्हें समझने में दिक्कत होगी। सो वी आर डूइंग इट फ्रॉम द वेरी बेसिक लेवल। तो मुझे उम्मीद है कि इतना इजी सा एग्जांपल से तुम्हें फोर्स मल्टीप्लायर बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। छोटा फोर्स लगाया, ज्यादा फोर्स को ओवरकम कर दिया, दिस इज व्हाट अ फोर्स मल्टीप्लायर इज। अब हम समझते हैं इस टर्म को, स्पीड मल्टीप्लायर को। हाउ कैन वी यूज अ मशीन एज अ स्पीड मल्टीप्लायर? लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ अ पेयर ऑफ सिजर्स। वैसे तो सिजर भी लीवर है, लीवर इज रिमूव्ड फ्रॉम योर सिलेबस, बट टू अंडरस्टैंड अगेन स्पीड मल्टीप्लायर, nothing can be a better example than a pair of scissors. मैं एक सीजर बना रहा हूं, मेरा डायग्राम बहुत अच्छा नहीं बनेगा बट तुम्हें समझने के लिए काफी रहेगा, ओके। तो ये एक पेयर ऑफ सीजर्स है, ओके, कैंची। सो दिस इज द फल्क्रम, जहां यहाँ पर तुम अपने फिंगर्स को रखते हो, सिजर्स को पकड़ते हो। आई होप यू आर एबल टू इमेजिन। डायग्राम थोड़ा गंदा है लेकिन समझने के लिए बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। सो दिस इज द फल्क्रम। नाउ यहाँ पर हम, ये है ब्लेड्स, दीज टू आर द ब्लेड्स ऑफ द सीजर। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द फिगर, राइट, ब्लेड्स ऑफ द सीजर। अब मुझे अगर किसी भी चीज को काटना होता है, आई वुड प्लेस दैट पर्टिकुलर थिंग इनसाइड, in between these two blades, and I would, apply effort here। तो एफर्ट हम यहाँ लगाते हैं, जहां पे मैंने अभी लिख दिया है, एफर्ट हम यहाँ लगाते हैं। एंड लोड, जिस फोर्स को मुझे ओवरकम करना है, काटना वगैरह है, तो हम वहां बीच में बिटवीन द ब्लेड्स हम उसको प्लेस करते हैं, राइट। नाउ हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड अ थिंग, अ टर्म, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। मैं जब इस एफर्ट को लगाऊंगा तो ये आर्म, मान लो ये इस आर्म की मैं बात कर रहा हूं, एफर्ट आर्म की बात कर रहा हूं, ये आर्म मान लेते हैं कि 2 सेंटीमीटर नीचे गया, ऐसे दबाया तो 2 सेंटीमीटर नीचे गया। और उसी समय ये वाला
लोड आर्म ऊपर जाएगा, जैसे ये एफर्ट आर्म नीचे आएगा, सीजर में ऐसे ही होता है, एफर्ट आर्म नीचे जाएगा तो ये लोड आर्म, दिस वन टॉकिंग अबाउट, विल गो अप। लेकिन क्या ये 2 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा? नहीं। ये अगर 2 सेंटीमीटर नीचे गया तो देखना मेजर करके भी ये 2 सेंटीमीटर से ज्यादा, मे बी 3 सेंटीमीटर ऊपर गया, तो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एफर्ट आर्म इज लेस देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड आर्म। देखो, लोड आर्म, ये लोड आर्म था, दिस इज द लोड आर्म, लोड आर्म ज्यादा डिस्प्लेस हुआ, और ये जो था ये एफर्ट आर्म था, एफर्ट आर्म कम डिस्प्लेस हुआ, एफर्ट आर्म कम डिस्प्लेस हुआ। फल्क्रम के लेफ्ट साइड में लोड आर्म है, दिस इज द लोड आर्म, एंड फल्क्रम के राइट साइड में एफर्ट आर्म है। एफर्ट आर्म जस्ट 2 सेंटीमीटर डिस्प्लेस हुआ तो लोड आर्म 3 सेंटीमीटर ऊपर गया। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ, ये इंपॉर्टेंट सा चीज है, इसे ही बोला जाता है स्पीड मल्टीप्लायर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड आर्म इज मोर देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट आर्म। हमने एफर्ट आर्म को डिस्प्लेस बहुत कम किया, लेकिन उसी टाइम में द सेम इंटरवल ऑफ टाइम में लोड आर्म ज्यादा डिस्प्लेस हो गया, यानी तुम्हें ज्यादा डिस्प्लेसमेंट मिला एफर्ट, लोड आर्म में ज्यादा डिस्प्लेसमेंट मिला लोड आर्म में, और कम डिस्प्लेसमेंट तुमने दिया एफर्ट आर्म को। सो इट इज अ स्पीड मल्टीप्लायर, क्योंकि सेम टाइम में ही एफर्ट आर्म तो कम डिस्प्लेस हुआ, लेकिन उतने ही सेम टाइम में लोड आर्म ज्यादा डिस्प्लेस हुआ, यानी लोड आर्म का स्पीड ज्यादा है, एफर्ट आर्म का स्पीड कम है। दैट मींस इट इज अ स्पीड मल्टीप्लायर। तो स्पीड मल्टीप्लायर होने के लिए ये इंपॉर्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड आर्म, इसलिए मैंने लिखा डी लोड आर्म, शुड बी मोर देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट आर्म। काफी इंपॉर्टेंट सा चीज है। तो ये जब इस सीजर का एग्जांपल दिया, ये हो गया एक स्पीड मल्टीप्लायर। स्पीड मल्टीप्लायर आई होप तुम्हें समझ में आया है। इसमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड आर्म इज मोर देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट आर्म। ऑलराइट, सिंपल है। अच्छा, बिफोर वी डिस्कस दिस थर्ड पॉइंट, device to change the direction of effort to a convenient direction, let us also understand कि मैंने यहाँ पर और लिखा था, means a machine can be either a force multiplier or a speed multiplier। तो अगर ये force multiplier है तो effort is less than load, मैंने लिख दिया था और समझाया भी। तो डेफिनेटली अगर वो speed multiplier होगा तो यहाँ पर ये चीज भी इंपॉर्टेंट है कि effort should be उल्टा, एफर्ट शुड बी ग्रेटर देन लोड होना चाहिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है स्पीड मल्टीप्लायर होने के लिए। फोर्स मल्टीप्लायर होने के लिए हमने क्या लिखा, एफर्ट शुड बी लेस देन लोड। तो स्पीड मल्टीप्लायर होने के लिए उसका उल्टा होना चाहिए, एफर्ट शुड बी ग्रेटर देन लोड। ठीक है, और अभी अभी हमने ये भी देख लिया कि स्पीड मल्टीप्लायर में डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड आर्म शुड बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट आर्म। अब से ये आर्म वर्ड को हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, इतना ही लिखेंगे तो चलेगा। ठीक है, ये आर्म न भी लिखे तो चलेगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, तब जाके ये स्पीड मल्टीप्लायर होता है। ये सब छोटी छोटी चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, अब एक हम पुली लेते हैं, तब बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। थर्ड वाला पॉइंट, मान लो एक तुम्हें पत्थर को उठाना है ऊपर, उसे ऊपर उठाना है तो तुम्हें एफर्ट भी लगाना पड़ेगा ऊपर, लेकिन ऊपर में एफर्ट लगाना काफी डिफिकल्ट होता है। तुम चाहते हो कि मैं नीचे एफर्ट लगाऊं, एफर्ट का डायरेक्शन नीचे हो जाए, लेकिन ये ऊपर उठ जाए, तो तुम्हें क्या यूज करना पड़ेगा, एक फिक्स्ड पुली, सिंगल फिक्स्ड पुली, कुछ इस तरह से। यहां पर तुमने उस भारी ऑब्जेक्ट को लगा दिया, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को इस ग्रूव के थ्रू इधर किया, तुम इधर एफर्ट लगा रहे हो नीचे, लेकिन ये लोड ऊपर उठ जा रहा है, लोड ऊपर उठ जा रहा है। तो तुमने क्या किया, एफर्ट को एक कन्वीनियंट डायरेक्शन में चेंज कर दिया। तुम्हारा मन नहीं कर रहा था कि मैं एफर्ट ऊपर लगाऊं, तुम्हारा मन कर रहा था कि मैं एफर्ट नीचे लगाऊं, तुमने कर भी दिया यूजिंग दिस मशीन। यानी क्या किया तुमने, यू चेंज्ड द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट टू अ कन्वीनियंट डायरेक्शन। इसमें ये ना तो स्पीड मल्टीप्लायर है ना तो फोर्स मल्टीप्लायर, ये सिंगल फिक्स्ड पुली। बट इसका यूज हम इसलिए कर रहे हैं कि हमने एफर्ट का डायरेक्शन टू अ कन्वीनियंट डायरेक्शन में चेंज कर दिया। ओके, डाउनवर्ड्स हम एफर्ट को अप्लाई। ठीक है, तो बेसिकली इस पॉइंट को हमने यहाँ पे कवर किया, यूजेस ऑफ सिंपल मशीन्स। इसको हम लोग बेहतरीन अब प्रॉपर वे में लिखने वाले हैं। ठीक है, मशीन का यूज हमने देख लिया। अच्छा,
अब प्रिंसिपल ऑफ मशीन क्या होता है? चलो अब लेट अस राइट इट लाइक अ क्वेश्चन। क्वेश्चन के तहत लिखेंगे तो कवर अप होगा। किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है? चलो लेट अस डू द फर्स्ट क्वेश्चन। डिफाइन द टर्म मशीन। डिफाइन द टर्म मशीन। State the principle of a machine. लिखो, a machine is a device by which we can either overcome a large resistive force, जिसको हम लोड बोलते हैं, at some point by applying a small force, छोटा फोर्स लगाकर हमने बड़े फोर्स को ओवरकम किया। जो फोर्स हमने लगाया उसे एफर्ट बोलते हैं, इसलिए लिख दिया। और एफर्ट कहाँ लगाया? कन्वीनियंट पॉइंट पर, एट अ कन्वीनियंट पॉइंट एंड इन अ डिजायर्ड डायरेक्शन। समझ में आ रहा है? इन अ डिजायर्ड डायरेक्शन। एफर्ट को हम डिजायर्ड डायरेक्शन में लगा सकते हैं। अभी अभी हमने सिंपल पुली, सिंगल फिक्स्ड पुली का यूज किया, तो हमारा डायरेक्शन ऑफ एफर्ट कन्वीनियंट डायरेक्शन में चेंज हो गया, यानी डिजायर्ड डायरेक्शन में हम चेंज कर सकते हैं। और बाय विच वी कैन obtain a gain in speed, a gain in speed। हम स्पीड में गेन ला सकते हैं। ऑलराइट, यानी हमें स्पीड मल्टीप्लायर की तरह हम उसे यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली जो तीनों यूजेस हम मशीन्स का डिस्कस किए, उसी को डेफिनेशन में लिख दिया गया है। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ अ मशीन? प्रिंसिपल ऑफ अ मशीन बड़ा सिंपल है। क्या है? व्हेन एनर्जी इज सप्लाइड टू अ मशीन, इज सप्लाइड टू अ मशीन, किसी भी मशीन में तुम एनर्जी सप्लाई करोगे यानी वर्क करोगे बाय अप्लाइंग एफर्ट, बाय अप्लाइंग द एफर्ट, एफर्ट लगाकर तुमने किसी भी मशीन पर एनर्जी सप्लाई किया, तो क्या होता है? वो लोड को ओवरकम करता है। इट ओवरकम्स द लोड। ये जरूरी नहीं है कि लोड हमेशा एफर्ट से कम ही होगा या ज्यादा ही होगा, ऐसा बात नहीं है। अगर लोड ज्यादा है एफर्ट से तो फोर्स मल्टीप्लायर है, लोड कम है एफर्ट से तो स्पीड मल्टीप्लायर है। लेकिन चाहे वो स्पीड मल्टीप्लायर हो चाहे वो फोर्स मल्टीप्लायर हो, एनर्जी तो मुझे देना ही पड़ेगा मशीन पर, एफर्ट अप्लाई करना ही पड़ेगा। और फिर वो एफर्ट क्या करता है? इट ओवरकम्स द लोड बाय डूइंग सम यूजफुल वर्क ऑन इट, बाय डूइंग सम यूजफुल वर्क on it. This is the principle of a machine. Very simple. What are the three ways in which machines are useful to us? मशीन का यूज अभी अभी हमने पढ़ा। फर्स्ट पॉइंट लिखो, it can be used as a force multiplier. Number two, it can be used as a speed multiplier. Number three, it can be used to change the direction of effort to a convenient
direction. Very simple. Very, very simple definition. Now let us understand these terms that we have written already. Load क्या होता है, effort क्या होता है, mechanical advantage क्या होता है, velocity ratio क्या होता है, work input, work output, efficiency. Simple formulas है, इन formulas पर based बहुत सारे questions आते हैं. फटाफट हम लोग इनको समझते हैं, तुम लोग लिखते जाना. लोड क्या होता है, सबसे पहला डेफिनेशन. इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस लिखो. इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस. दीज डेफिनेशन कैन कम एज इंडिपेंडेंट क्वेश्चन, लाइक डिफाइन लोड, डिफाइन एफर्ट, ऐसे आ सकता है. लोड क्या होता है? इट इज द रेजिस्टिव फोर्स, द रेजिस्टिव फोर्स टू बी ओवरकम बाय द मशीन. जिस फोर्स को ओवरकम करना है एफर्ट लगाकर, टू बी ओवरकम बाय द मशीन. एफर्ट क्या होता है? द फोर्स अप्लाइड ऑन द मशीन टू ओवरकम द लोड. द फोर्स अप्लाइड ऑन द मशीन, मशीन के ऊपर जो फोर्स हम अप्लाई करेंगे टू ओवरकम द लोड, लोड को ओवरकम करने के लिए. थर्ड क्या है? मैकेनिकल एडवांटेज. बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म, इस चैप्टर का हीरो है. मैकेनिकल एडवांटेज इज नथिंग बट रेशियो ऑफ लोड एंड एफर्ट. यानी मैकेनिकल एडवांटेज इज लोड अपॉन एफर्ट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट concept hidden behind it. Mechanical advantage is load upon effort, यानी load divided by effort. इस रेशियो को मैकेनिकल एडवांटेज बोलते हैं. लोड भी फोर्स होता है, एफर्ट भी फोर्स होता है. तो फोर्स डिवाइड बाय फोर्स, यूनिट क्या होना चाहिए? कुछ नहीं, क्योंकि ऊपर में भी फोर्स है तो न्यूटन होगा, नीचे में भी एफर्ट फोर्स होता है, न्यूटन होगा. न्यूटन न्यूटन कट जाएगा. मैकेनिकल एडवांटेज का कोई यूनिट नहीं होता है. मैकेनिकल एडवांटेज हैज नो यूनिट. इसका यहाँ पे टॉपिक खत्म हो गया सर, मैकेनिकल एडवांटेज? जी नहीं, इसके बाद तो यहाँ स्टार्ट हुआ है. मैकेनिकल एडवांटेज एक बहुत बड़ा हीरो है, इसके अंदर बहुत रहस्य छिपा हुआ है. वी विल कम डिस्कस अबाउट दैट. नेक्स्ट टर्म है वेलोसिटी रेशियो. इसके दो फॉर्मूला होता है. एक होता है वेलोसिटी ऑफ एफर्ट, जिसको वी एल बोलते हैं. यानी इसको पहले तो डेफिनेशन लिख दो. दिस इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ एफर्ट and velocity of load. तो वेलोसिटी रेशियो का डेफिनेशन क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ एफर्ट डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लोड. और वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम. इसको आगे हम इस तरह से लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट की जगह डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट डिवाइडेड बाय टाइम. एंड वेलोसिटी ऑफ लोड का मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड डिवाइडेड बाय टाइम. एंड दिस टाइम इज द सेम टाइम, जिस टाइम में एफर्ट डिस्प्लेस होगा उतने ही टाइम में लोड डिस्प्लेस होगा. टाइम टाइम कैंसिल हो जाएगा. एंड वी आर लेफ्ट विथ दिस डेफिनेशन ऑल्सो. वेलोसिटी रेशियो इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड. अब देखो हमारे पास वेलोसिटी रेशियो के दो डेफिनेशन है. या तो मैं वेलोसिटी रेशियो को बोलूं रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ एफर्ट टू वेलोसिटी ऑफ लोड, या तो मैं बोलूं रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड. एंड दोनों केसेस में ही यूनिट कुछ नहीं होगा, क्योंकि दोनों में ही अगर वेलोसिटी बाय वेलोसिटी भी करूं तो यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे. डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट भी करूं तो यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे. वेलोसिटी रेशियो हैज नो यूनिट. अब कुछ बातों को समझते हैं. अब पीछे देखना पड़ेगा हमें. बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखने वाला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज लिखने वाला है. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इनको लिखना पड़ेगा तुम्हें और समझना ज्यादा जरूरी है. देखो मैकेनिकल एडवांटेज होता है लोड अपॉन एफर्ट. अच्छा, अभी अभी हमने पीछे देखा कि अगर लोड बड़ा है एफर्ट से, यानी एफर्ट इज स्मॉलर देन लोड, लोड इज बिगर देन एफर्ट, तो वो फोर्स मल्टीप्लायर होगा. और लोड अपॉन एफर्ट, लोड बड़ा है एफर्ट से, यानी न्यूमरेटर इज बिगर देन डिनोमिनेटर, हेंस दिस फ्रैक्शन विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1. कभी कोई फ्रैक्शन लिखो जिसमें न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, जैसे 4/3, न्यूमरेटर इज बिगर देन डिनोमिनेटर. यू सॉल्व इट, यू विल ऑलवेज गेट 1 पॉइंट समथिंग, मींस इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1. तो कभी भी अगर ऐसा हो कि लोड अपॉन एफर्ट
इज ग्रेटर देन 1, यानी लोड अपॉन एफर्ट का मतलब मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब ही है कि लोड बड़ा है एफर्ट से, इसका मतलब ही है कि वो फोर्स मल्टीप्लायर है, क्योंकि फोर्स मल्टीप्लायर में ही लोड बड़ा होता है एफर्ट से। और कभी अगर ऐसा हुआ मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन 1, इसका मतलब लोड अपॉन एफर्ट इज लेस देन 1। तो कभी भी किसी भी फ्रैक्शन का वैल्यू लेस देन 1 तब होता है जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमरेटर से, यानी एफर्ट बड़ा होता है लोड से। तो इस केस में मैकेनिकल एडवांटेज जब लेस देन 1 हो, इसका मतलब वो स्पीड मल्टीप्लायर है मशीन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव कम टू नो। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इफ मैकेनिकल एडवांटेज इज मोर देन 1, it means that the machine is a force multiplier and not a speed multiplier. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आएगा आएगा आएगा, आता आ रहा है आता आ रहा है आता आ रहा है। अगर नहीं विश्वास कर रहे हो पिछले साल के क्वेश्चंस उठा के देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट चीज मैंने बोला। इफ मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1, इट इज अ फोर्स मल्टीप्लायर। समझ में आया क्यों? मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या? मैकेनिकल एडवांटेज मतलब लोड अपॉन एफर्ट, तो मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या? लोड अपॉन एफर्ट इज ग्रेटर देन 1। अच्छा, लोड अपॉन एफर्ट इज ग्रेटर देन 1 तभी हो सकता है, एक फ्रैक्शन का वैल्यू ग्रेटर देन 1 तभी हो सकता है जब लोड ज्यादा होगा एफर्ट से, यानी न्यूमरेटर बड़ा होगा एफर्ट से। अच्छा, लोड ज्यादा होगा एफर्ट से, ये कब होगा? जब वो फोर्स मल्टीप्लाई, ओनली देन लोड इज बड़ा देन एफर्ट। समझ में आ रहा है? ये चीज क्लियर हो गया? अच्छा, कभी भी अगर उल्टा हुआ, इफ मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन 1, इसका मतलब ये स्पीड मल्टीप्लायर है, क्योंकि इस उल्टा उल्टा है, मल्टीप्लायर है, क्योंकि इसका मतलब लोड अपॉन एफर्ट इज स्मॉलर देन 1। किसी भी फ्रैक्शन का वैल्यू स्मॉलर देन 1 तभी होगा जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा, यानी एफर्ट इज बड़ा देन लोड एंड एफर्ट इज बिगर देन लोड तब होगा जब वो स्पीड मल्टीप्लायर है। ठीक है? आई होप नाउ यू आर एबल टू कनेक्ट दीज क्लूज दैट वी हैव गिवन ऑलरेडी, वी हैव डिस्कस दीज क्लूज, आप इनको कनेक्ट कर पा रहे हो। ठीक है? तो ये स्पीड मल्टीप्लायर होगा। ऑलराइट, और एक और बात, अब हम वेलोसिटी रेशियो पर आते हैं, वहां पर भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वेलोसिटी रेशियो का वैल्यू है या डेफिनेशन है वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड, या फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। अगर वेलोसिटी रेशियो का वैल्यू लेस देन 1 हो, वेलोसिटी रेशियो का वैल्यू लेस देन 1 हो, तुम लोग बताना ये क्या मल्टीप्लायर होगा? वेलोसिटी रेशियो का वैल्यू अगर लेस देन 1 हो, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड का वैल्यू लेस देन 1 हो। तो लेस देन 1, किसी भी फ्रैक्शन का वैल्यू लेस देन 1 तब हो सकता है जब डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड बड़ा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमरेटर से, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड बड़ा हो। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, अभी अभी लिखा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड आप इज बड़ा देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, आप अगर ऐसा कभी भी हो, यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड इज बिगर देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, तब वो स्पीड मल्टीप्लायर होता है। यानी वेलोसिटी रेशियो का वैल्यू अगर लेस देन 1 है, देन इट इज अ स्पीड मल्टीप्लायर। और इसका उल्टा अगर हम करते हैं कि वेलोसिटी रेशियो इज ग्रेटर देन 1, कभी भी अगर हुआ, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड इस फ्रैक्शन का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड इज स्मॉलर देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, इसका मतलब ये फोर्स मल्टीप्लायर है। तो फोर्स मल्टीप्लायर होने के लिए दो कंडीशंस, हमने लिखा नहीं है, लिख लो इसको, इसका उल्टा, फोर्स मल्टीप्लायर होने के लिए दो कंडीशन, एक कंडीशन तो है एफर्ट शुड बी लेस देन लोड, दूसरा कंडीशन क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड आर्म, सिंपल लोड भी लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड इज लेस देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, यानी इसका उल्टा, इन दोनों का, ये दोनों एक दूसरे के उल्टा है। तो फोर्स मल्टीप्लायर का कंडीशन स्पीड मल्टीप्लायर के कंडीशन से उल्टा होता है। इफ एफर्ट इज, इसको फिर से एक बार देख लो आंखें खोलकर, एफर्ट इज लेस देन लोड, फोर्स मल्टीप्लायर, एफर्ट इज ग्रेटर देन लोड, स्पीड मल्टीप्लायर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, स्पीड मल्टीप्लायर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड इज लेस देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, फोर्स मल्टीप्लायर। यहां पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट वाज मोर देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड था, यानी ये फोर्स मल्टीप्लायर है। तो वेलोसिटी रेशियो कभी भी ग्रेटर देन 1 हो, फोर्स मल्टीप्लायर, वेलोसिटी रेशियो कभी भी लेस देन 1 हो, स्पीड मल्टीप्लायर। इन चीजों को तुम्हें
याद भी करना है, समझना भी है। ये क्लियर हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो क्या है? वर्क इनपुट, वर्क आउटपुट एंड एफिशिएंसी। बड़ा इजी है, बड़ा इजी चीज है, कुछ नहीं। चलो नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, कौन सा नंबर होगा? नंबर 5। नंबर 5, वर्क इनपुट। वर्क इनपुट जिसे हम सिंबल में W इनपुट लिखते हैं। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है चिल्ड्रन? वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पिछले चैप्टर में पढ़ा था। तो वर्क इनपुट का भी फॉर्मूला होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन इनपुट का लिख रहे हैं तो हम फोर्स में भी इनपुट फोर्स लिखेंगे। अच्छा, इनपुट फोर्स का मतलब होता है एफर्ट, जो फोर्स हम इनपुट दे रहे हैं, मशीन के ऊपर डाल रहे हैं। और आउटपुट फोर्स होता है लोड। तो वर्क इनपुट में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, लेकिन कौन सा फोर्स? एफर्ट इज द इनपुट फोर्स, वी हैव रिटन एफर्ट। एंड डिस्प्लेसमेंट कौन सा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, डीई, यानी ई इंटू डीई, दिस इज वर्क इनपुट। सिमिलरली वर्क आउटपुट क्या हो जाएगा चिल्ड्रन? इट इज नथिंग बट इसका जस्ट उल्टा, डब्ल्यू आउटपुट। तो वर्क आउटपुट क्या हो जाएगा? आउटपुट फोर्स। वर्क का फॉर्मूला वही है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कौन सा फोर्स? आउटपुट फोर्स। आउटपुट फोर्स मतलब लोड। एंड डिस्प्लेसमेंट, कौन सा डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। वर्क आउटपुट इज इक्वल टू लोड इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। ठीक है। अच्छा, लास्ट डेफिनेशन जो अभी हम डिस्कस करेंगे वो है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का सिंबल ऐसा लिखते हैं, ये एन नहीं है, इसको ईटा बोलते हैं, ईटा। ठीक है, सिंबल इज ईटा। तो ईटा का यूज होता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का एक सिंपल सा फॉर्मूला है वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। वर्क इनपुट, सिंपल सा फॉर्मूला, वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। इसको परसेंटेज में जनरली एक्सप्रेस करते हैं, नहीं भी करोगे तो चलेगा, परसेंटेज में एक्सप्रेस करोगे तो इंटू 100% कर देते हैं। अब इसी फॉर्मूला पर बेस्ड एफिशिएंसी का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम डिराइव करने वाले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। देखो अभी अभी हमने लिखा एफिशिएंसी इज वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। Let us not express it as a percentage right now. Let us keep it like a fraction. You may or may not express it as a percentage. ये जो into 100% लिखा ये ऑप्शनल था। ओके, नाउ ये फॉर्मूला समझ में आया, रट लिया होगा, याद कर लिया होगा। एफिशिएंसी ऑफ एनी मशीन इज वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। अब हम क्या करते हैं, इस वर्क आउटपुट की जगह पर हम इसे लिखते हैं लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, क्योंकि वर्क आउटपुट का हमने अभी अभी देख लिया, फॉर्मूला है लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। सिमिलरली वर्क इनपुट के प्लेस पर हम लिखते हैं एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, क्योंकि वर्क इनपुट इज एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, लोड अपॉन एफर्ट को हम किस नाम से बुलाते हैं? वी हैव स्टडीड जस्ट नाउ दिस लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट, यू कैन कॉल इट मैकेनिकल एडवांटेज। देखो लोड अपॉन एफर्ट इज मैकेनिकल एडवांटेज, तो मैकेनिकल एडवांटेज हो गया। एंड लोड अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट किसको बोलते हैं? देखो अभी अभी हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, यहां देखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड इज वेलोसिटी रेशियो, और यहां पर इसका रेसिप्रोकल है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट है। तो इसका मतलब कि दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ 1 अपॉन वेलोसिटी रेशियो। 1 अपॉन वेलोसिटी रेशियो है ना। वेलोसिटी रेशियो का डेफिनेशन अभी अभी हमने देखा, इट इज डी ई अपॉन डी एल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। लेकिन यहाँ पर ऊपर में डी एल है, नीचे डीई है, इसका उल्टा। दैट मीन्स दिस फ्रैक्शन इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेलोसिटी रेशियो। क्लियर हो गया? यानी इसके जगह पर हम 1 अपॉन वी आर लिख सकते हैं। तो एल अपॉन ई के प्लेस पर हमने एम ए लिख दिया, एंड डी एल अपॉन डीई के प्लेस पर हमने 1 अपॉन वी आर लिख दिया। आ गया हमारा एफिशिएंसी इज इक्वल टू एम ए अपॉन वी आर, इसी फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसको अगर हम एम ए को सब्जेक्ट बनाए तो एम ए इज इक्वल टू वी आर इंटू एफिशिएंसी। मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी के बीच वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस्टेब्लिश हो गया, जिस पर बेस्ड इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं तुम सोच भी नहीं सकते हो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है। ऑलराइट, अब इन्हीं सारे फॉर्मूला पर बेस्ड किस तरह के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, किस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको हम आगे के
सीरीज में आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आई होप आज का वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। इफ यू हैव लाइक्ड इट, इफ यू हैव लव्ड इट, प्रेस द लाइक बटन टू सपोर्ट मी एंड to show your love. Also share it with others and comment below how you are thinking about these revision sessions. Thank you. God bless you, children, everyone. Take care. Study well.